Good morning, everyone. Today we have to start question number 6. This is an unsolved question. Vrishali and Lina are equal partner in the business. Their balance sheet as on 31st March 2018 stood as under. This is the balance sheet. In that balance sheet, first we have to mark the adjustment here. They decided to admit Aparna on 1st April 2018 on the following terms. Means Aparna is a new partner. First adjustment we have to mark here, the machinery and building be depreciated by 10%. So here we have to mark machinery adjustment number 1 and building adjustment number 1. Then reserve for doubtful debts is to be increased by rupees 5,000. So we have to mark adjustment number 1 for debtors. Then second adjustment, bill receivable are taken over by Vrishali at discount of 10%. So here bill receivable adjustment number 2. Third adjustment, Aparna should bring rupees 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. So cash in bank को mark करेंगे adjustment number 3. Fourth adjustment, the capital of all partners to be adjusted in proportion in new profit sharing ratio by opening current account of the partners. Here we have to open current account, means balance goes to current account. This thing is different in that adjustment number 4. Prepare profit and loss adjustment account, partners capital account and balance sheet of new firm. So here we have to open profit and loss adjustment account in the books of partnership firm, then partners capital account, profit and loss adjustment account and revaluation account one and the same. This is nominal account. So from liability side we have to start sundry creditors. Inner column 90,000, this is a wrong printing is there. So sundry creditors, liability side we have to record balance sheet liability side, sundry creditors 90,000. Then capitals Vrishali and Lina, that we transfer to partners capital account by balance brought down, Vrishali 45,000 and Lina 30,000. After that general reserve is there. General reserve 18,000 amount दिया है. That general reserve is distributed among old partners into their ratio. वे ratio कितना दिया है? Equal ratio दिया है. That is 1:1. So general reserve 18,000 है, वो transfer होगा old partners में. So by general reserve 9,000 Vrishali and Lina 9,000. After that here we have to start asset side, cash in bank 62,000, that is recorded in asset side 62,000. Here cash at bank 62,000. Then immediately we have to solve here adjustment cash in bank adjustment number 3. Aparna should bring rupees 60,000 as capital for her 1/4 share in future profit. मीन्स अपर्णा ने 60,000 लाया है कैपिटल के माध्यम से. तो अभी एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट. बैंक क्यों है? क्योंकि यहाँ पे एसेट साइड में कैश इन बैंक दिया है इसीलिए. सो बैंक अकाउंट डेबिट टू अपर्णास कैपिटल अकाउंट. सो सेकेंड इफेक्ट कैश एट बैंक एसेट साइड में जाएगा 62,000 प्लस 60,000 आउटर कॉलम 1,22,000. दिस इज द सेकेंड इफेक्ट. Then first effect goes to partners capital account, credit side by bank. किसने लाया है? अपर्णा ने लाया है. So अपर्णा के अकाउंट में 60,000. So here adjustment number 3 is completed. Then asset side में debtors दिया है. Okay, so debtors we have to write here asset side debtors 31,000 लिखा. जो अमाउंट है इनर कॉलम में 31,000 वही लिखेंगे 31,000. देन एडजस्टमेंट नंबर 1, मशीनरी एंड बिल्डिंग depreciated by 10%. Here reserve for doubtful debts is to be increased by rupees 5,000. See here also wording is important.
RDD इंक्रीज बाय 5000 से इंक्रीज हुआ है. सो ये 5000 प्लस ये इनर कॉलम वाले ओल्ड RDD 1000 मीन्स 6000 का इफेक्ट होगा लेस फ्रॉम डेटर्स. सो लेस RDD एसेट साइड 6000 माइनस 31,000 माइनस 6,000 आउटर कॉलम 25,000. लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट में खाली इफेक्ट कितने का आएगा 5,000 का आएगा, क्योंकि एडजस्टमेंट में क्या दिया है, इट इज़ इंक्रीज बाय ₹5,000. सो टू RDD डेबिट साइड 5,000. देन मशीनरी एंड बिल्डिंग टू बी डेप्रिसिएटेड. हियर ऑल्सो बिल्डिंग इज देयर एंड मशीनरी इज देयर. सो बिल्डिंग 55,000 एसेट साइड, बैलेंस शीट एसेट साइड 50,000 लेस डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट दिया है 10%, 5,500 आउटर कॉलम 49,500. सेकेंड इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड बिकॉज एसेट डिक्रीज. सो टू बिल्डिंग 5,500. आफ्टर दैट मशीनरी दिया है, मशीनरी का भी 10% डेप्रिसिएशन है. मशीनरी का वैल्यू कितना है, मशीनरी का वैल्यू 24,000. सो इनर कॉलम में लिखा 24,000 लेस डेप्रिसिएशन 10%. सो 24,000 के ऊपर 10% माइनस 2,400 आउटर कॉलम 21,600. और सेकेंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट डेबिट साइड हियर टू मशीनरी 2,400 बिकॉज asset decrease, machinery decrease. So adjustment number 1 is also completed. Then see the second adjustment, bills receivable is there. So bills receivable we have to record balance sheet asset side, bills receivable 12,000. Adjustment क्या दिया है, bills receivable are taken over by Vrishali at a discount of 10%. मतलब bill receivable में 10% डिस्काउंट दिया पहले. So बैलेंस शीट एसेट साइड में बिल्स रिसीवेबल लिखा लेस 10% डिस्काउंट. 12,000 के ऊपर 10% 1,200 माइनस करके इनर कॉलम में ही अमाउंट लिखेंगे 10,800 बिकॉज इन दैट एडजस्टमेंट दैट बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली. सो लेस टेकन बाय वृषाली 10,000. सो नील इफेक्ट इज देयर. एंड ये सेकेंड इफेक्ट 1,200, this is also bills receivable decreases. So profit and loss adjustment debit side to bills receivable discount 1,200 because this is also expenses. So second adjustment is over. Then third adjustment also over. Now come to the fourth adjustment. The capital accounts of all partners to be adjusted in proportion in new profit sharing ratio. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालना पड़ेगा. सो वी हैव टू कैलकुलेट हियर वर्किंग नोट दैट कैलकुलेशन ऑफ न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो. पहले ओल्ड रेशो कितना दिया है, वृषाली और लीना का ओल्ड रेशो कितना दिया है, इक्वल ओल्ड रेशो दिया है. सो हियर वी हैव टू राइट इक्वल रेशो. देन फॉर्मूला इज देयर, बैलेंस रेशो इज इक्वल टू 1 माइनस शेयर ऑफ न्यू पार्टनर. न्यू पार्टनर कौन है, अपर्णा. तो अपर्णा का शेयर कितना दिया है यहाँ पे एडजस्टमेंट में 1/4 दिया है शेयर. सो 1 माइनस 1/4. सो 4 LCM आ गया. सो 4 इंटू 1 4 माइनस 1/4 3/4. फिर वृषाली का न्यू रेशो निकालेंगे. न्यू रेशो, वृषालीज न्यू रेशो इज इक्वल टू दिस बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो. बैलेंस रेशो कितना आया है 3/4 और वृषाली का ओल्ड रेशो कितना है 1:1 दैट इज़ 1/2. सो आ गया 3/8. सेम वे लीना का भी न्यू रेशो निकालेंगे. बैलेंस रेशो इंटू ओल्ड रेशो 3/4 इंटू 1/2. सो 3/8 आ गया. और उसके बाद अपर्णा का न्यू रेशो भी आएगा. बैलेंस रेशो 1/4 इंटू 2/2 दैट इज़ 8 LCM इज देयर. सो 2/8. सो तीनों पार्टनर का रेशो क्या आएगा 3:8 3/8 3/8 एंड 2/8 मीन्स 3:2. सो टोटल कैपिटल ऑफ द फॉर्म इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर्स इनटू कैपिटल बाय न्यू पार्टनर्स. तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा, टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा.
तो टोटल कैपिटल कैसे निकालेंगे, ये 1/4 रेशो दिया है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल हो जाएगा मतलब 4/1 आएगा। सो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म इज इक्वल टू रेसिप्रोकल ऑफ न्यू पार्टनर। सो 1/4 का रेसिप्रोकल हो गया 4/1 इंटू कैपिटल बाय न्यू पार्टनर्स। कैपिटल कितना लाया है, 60,000 लाया है अपर्णा ने, ये अपर्णा ने 60,000 लाया है ना। सो 60,000 इंटू 4, 2,40,000। फिर कैलकुलेट करेंगे न्यू रेशो, वृषाली का कैपिटल निकालेंगे न्यू रेशो से। सो 2,40,000 इंटू 3/8 तो आता है 90,000। सेम वे लीनास का कैपिटल 2,40,000 इंटू 3/8 90,000। और सेम वे इसका तो ऑलरेडी 60,000 दिया है अपर्णा का। सो ये कैपिटल यहाँ पे ट्रांसफ़र होगा पार्टनर्स कैपिटल में टू बैलेंस कैरीड डाउन। डेबिट साइड 90,000 एंड 60,000। okay, and same capital transfer to balance sheet liability side. Vrushal is 90,000, Lina's 90,000 and Aparna 60,000. outer column 2,40,000. so second effect भी आ गया। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट है। okay, so here all adjustments are completed, fourth one also completed, and now we have to do the total of profit and loss adjustment account total करेंगे। see here debit side is more क्योंकि क्रेडिट में कुछ नहीं था। so debit balances of profit and loss adjustment, this is a revaluation loss। so 14,100 ये लॉस आ गया। ये लॉस किस में डिस्ट्रीब्यूट होता है, ओल्ड पार्टनर्स के ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो कितना दिया है, 1:1 इक्वल रेशो दिया है। सो वृषाली का 7,050 और लीना का 7,050। ये टोटल हो गया बोथ द साइड। देन दिस रिवैल्यूएशन लॉस ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सो टू प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट 7,050 7,050। ओके, फिर टोटल करेंगे। और जो ये बिल रिसीवेबल हो गया है इसका टेकन बाय वृषाली, सो सेकेंड इफेक्ट यहाँ पे आ गया। टू बिल्स रिसीवेबल टेकन बाय वृषाली 10,800, इसीलिए यहाँ का बिल लाइबिलिटी बैलेंस शीट एसेट साइड का बिल्स रिसीवेबल का इफेक्ट नील आ गया। ओके, अभी टोटल करेंगे हम लोग। दिस हियर क्रेडिट्स डेबिट साइड इज मोर फॉर वृषाली का टोटल करेंगे 1,07,850। फिर लीना का 97,050 और अपर्णा का 60,000। एंड दिस डेबिट टोटल माइनस क्रेडिट टोटल, 45,000 प्लस 9,000 हो गया 54,000। माइनस किया तो बैलेंस कितना आ गया 54,000। 1,07,850 से माइनस करेंगे तो आता है 53,850। ओके, देन लीना का टोटल आया है 97,050 डेबिट बैलेंस, माइनस 39,000 करेंगे। 97,050 से 39,000 माइनस करेंगे तो बैलेंस आता है 58,050। टोटल हो गया 97,050। और अपर्णा का ऑलरेडी 60,000 है। ओके, दैट 60,000 वी ट्रांसफर हियर टू बैलेंस कैरिड डाउन ऑलरेडी। ओके, एंड दिस बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू करंट अकाउंट, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ द फर्म मीन्स दैट बैलेंस ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट अकाउंट। सो ओल्ड पार्टनर्स के करंट अकाउंट में ये बैलेंस आ गया। एंड दिस इज़ व्हाट डेबिट बैलेंसेस, डेबिट बैलेंस है, इसीलिए इसका रिकॉर्ड कहाँ पे आ गया, बैलेंस शीट एसेट साइड पार्टनर्स करंट अकाउंट। दिस इज पार्टनर्स करंट अकाउंट। वृषाली 53,850 एंड लीना 58,050। outer column 1,11,900 because asset is having debit balance। asset का हमेशा डेबिट बैलेंस होता है और लाइबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है। सो ये पार्टनर्स करंट अकाउंट एसेट साइड में रिकॉर्ड हो गया। और ये कैपिटल बैलेंसेस, दिस इज क्रेडिट बैलेंसेस। सो क्रेडिट बैलेंस कहाँ पे ट्रांसफ़र हो गया, कैपिटल अकाउंट्स में। सो अभी टोटल करेंगे। ये टोटल हो गया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का
अभी बैलेंस शीट का टोटल करेंगे। लायबिलिटी का टोटल आता है 3,30,000 और एसेट का टोटल आता है 3,30,000. So in this question the new thing is what here, that न्यू शेयरिंग रेशो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो निकालेंगे और करंट अकाउंट में बैलेंस ट्रांसफ़र किया है. एंड बिल्स रिसीवेबल आर टेकन ओवर बाय वृषाली एट अ डिस्काउंट ऑफ ₹10%. So you have to solve this question. You have to solve this question in your notebook.